نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا رمضان کا خوش آمدید کہنے کے لیے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کی مجلس نمبر 5 میں ہم اپنی پچھلی جو سبق تھا روزوں کے مسائل محمد اقبال کیلانی ان کی تصنیف اس میں ہم آگے بڑھیں گے اور اگلے چیپٹر جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ ان میں سے کچھ کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلی مجلس میں ہم نے قضاء روزوں کے مسائل تک ہم نے تذکرہ کیا تھا، جو مختلف چیپٹرز ہم نے دیکھے تھے تراویح، نماز تراویح کے بارے میں، اور روزوں کی رخصت کہ کن کن معمولات میں یا کن کن وجوہات کی وجہ سے روزے جو ہیں وہ چھوڑ دینا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا اس کی اجازت ہے یا چھوڑ دینے چاہیے، اور پھر قضاء روزے جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ قضاء روزے کیسی صورتیں میں ہوتے ہیں اور وہ کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا اگلا جو چیپٹر ہے اگلا چیپٹر ہمارا وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یعنی ایسے معاملات یا ایسے کچھ کام یا ایسی کچھ باتیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں یا روزہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ہم دعا روزانہ کا ہمارا معمول ہے۔ ہمارا آج کا باقاعدہ سبق آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم اللہ کی حمد اور اس کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آگے۔ آج کا ہمارا سبق جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا، ہمارا یہ جو چیپٹر ابھی شروع ہو رہا ہے وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، وہ کام یا وہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں یا باطل نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس بھول چوک کر کھا پی لینے سے روزہ توڑتا ہے، نہ ہی مکروہ کرتا ہے۔ تو بھول چوک کر اگر کچھ کھا لیا جائے یا پی لیا جائے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، بلکہ روزہ اسی طرح سے رہتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ روایت ہمیں جو کہ بخاری سے ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ یہ ایک عام سا ایک معاملہ ہے جو اکثر رمضان میں روزوں کے دوران ہمارے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر کسی نے بھول چک کر کچھ کھا لیا تو وہ اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ توڑا نہیں، بلکہ وہ روزہ اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اس بارے میں زیادہ شک یا زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ خاص کر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو شروع کے دنوں میں اکثر جو ہے وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں کس قدر ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کس قدر بڑی آسانیاں جو ہے وہ ہمارے لیے دیتی ہے ہمیں، تاکہ ہم بڑی آسانی سے
खुश उसलूबी के साथ, अच्छे खुशबू के साथ ये सारे काम जो है वो कर सके। इसी तरह से आगे अ, अब मतलब भूल चुक चुक कर खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता। इसके बारे में किसी को मजाक करना या किसी को कोई बात करना, वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं होता। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले सबक में कुछ रिवायात को देखा कि सहाबा करम जो है, उनमें से कुछ रोज़ा रखते, कुछ छोड़ देते कुछ मामूलात की वजह से। तो कोई एक दूसरे के ऊपर बात नहीं करता था। इसी तरह से तरावी, नमाज तरावी या क़यामुल लैल या तहज्जुद की नमाज या मतलब रमज़ान की रात की जो क़याम है, उसके बारे में भी सहाबा कराम में और बाद में भी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रहा है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर किसी ने नकीर नहीं की, एक दूसरे दूसरे ऊपर किसी ने कोई मुखालफत या तंज या इस तरह से लड़ाई झगड़ा या सख्त कलामी, इस तरह की कोई बातें नहीं थी। तो ये हमारा दीन जो है वो तो हमें बड़ा खूबसूरत रवैया जो है वो हमें सिखाता है अपने आपस के मामलात में। तो लिहाजा हमें अब किसी भी मामले में उलझना नहीं चाहिए और ना ही किसी मामले को कॉम्प्लिकेटेड बना देना चाहिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे मिसवाक करने से रोज़ा मकरू नहीं होता। हज़रत आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा की हालत में इतनी मर्तबा मिसवाक करते हुए देखा कि गिन नहीं सकता। ये बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। अब मिसवाक, और आजकल मिसवाक का रवाज जो है वो तो ज़्यादा आम नहीं। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसवाक का इह्तमाम करते हैं नमाज से पहले और बतौर ख़ास। लेकिन आम तौर पर आजकल जो है वो मिसवाक की बजाय टूथपेस्ट वगैरह जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये जो हुक्म है या ये जो आसानी है, ये टूथपेस्ट वगैरह जो है उन पे भी उसी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन एहतियात ये रखनी चाहिए कि कोई रोज़े की हालत में कोई मतलब वो टूथपेस्ट या इवन के मिसवाक के भी ज़रात जो है वो निगले ना जाएं, बल्कि कुली करके साफ उसको रखा जाए। बल्कि जिस तरह से नाक के बारे में रिवायत है, आगे जाके उस दोबारा भी आएगी कि रोज़े के दौरान नाक में पानी इतना ज़्यादा ना चढ़ाया जाए कि वो खलक में चला जाए। इसी तरह से मिसवाक करने या इसके मुतबादिल जो भी ज़राए टूथपेस्ट वगैरह है, तो उनमें भी हमें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं वो हमारे हलक से नीचे ना चला जाए। तो हमें भरपूर अंदाज से उसका एहतमाम जो है वो रखना चाहिए, एहतियात रखनी चाहिए। आम दिनों में जिस अंदाज से करते हैं, रमज़ान के दौरान या रोज़े के दौरान थोड़ा सा मज़ीद एहतियात कर लें तो उसमें ज़्यादा हमारे लिए बेहतरी है। इसी तरह से गर्मी की शिद्दत से रोज़ादार सर में पानी बहा सकता है, और इस तरह इससे रोज़ा भी मकरू नहीं होता। गर्मी की शिद्दत की वजह से सर में पानी बहाना या नहा लेना या गीला कपड़ा जो अपने जिस्म पर डाल लेना, ये सारी की सारी जो है इनकी इजाज़त है। इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। जैसा कि ये सिचुएशन में हमें पता चलता है, ये अबू दाऊद की रिवायत यहाँ पर हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी बहा रहे थे। इसी तरह से यानी इस तरह के सारे मामूलात जो हैं उनमें कोई रोज़े के ऊपर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसमें, इसलिए उसमें कोई शक करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रोज़े की हालत में मज़ी खारिज होना या इख्तिलाम हो जाए तो रोज़ा टूटता है, ना ही मकरूह होता है। ये भी कैफियत जो है वो कभी हमारे ऊपर आ सकती है। तो लिहाजा इसमें भी हमें ज़्यादा शक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत इकरमा रज़ी तआला अन्हुम फरमाते हैं कि रोज़ा किसी चीज़ के जिस्म में दाखिल होने से टूटता है, जिस्म से खारिज होने से नहीं टूटता। बुखारी की ये रिवायत है। तो अगर जानबूझकर ऐसा कोई बेहयाई का काम किया जाए तो यकीनन वो रोज़ा टूट जाएगा और बातिल होगा, और उसका कफ़ारा वगैरह जो है वो भी देना होगा। लेकिन अगर एक बायोलॉजिकल साइकिल या एक कुदरती एक अमर जो है उसके उसमें अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है
तो उससे फिर रोज़ा मतलब उसी तरह से कायम रहता है, बल्कि इसलिए रोज़ा जो है उसको मुकम्मल करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। सर में तेल लगाना, कंघी करना, आंखों में सुरमा लगाना, हंडिया का जायका चखना, थूक निकलना और मक्खी के हलक में चले जाने से रोज़ा मकरू नहीं होता या टूटता नहीं। इसी तरह से रोज़ादार गर्मी की शिद्दत में कपड़ा पानी में तर करके बदन पर रख सकता है, इससे भी रोज़ा मकरू नहीं होता है। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे मामूलात हैं हमारे रोज़मर्रा के, जिनमें हमें हमारे जो सहाबा कराम है उनके कौल हमें मिलते हैं कि ऐसे सारे मामलात से रोज़ा जो है वो बातिल नहीं होता, टूटता नहीं या मकरू नहीं होता। जैसा कि ये कुछ सहाबा कराम के अकवाल जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो किताबें हैं सोम या रोज़ों से मुतल्लिका, वहाँ से यहाँ पर नकल किए गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो कि जब तुम में से कोई रोज़ादार हो तो उसे तेल कंघी कर लेना चाहिए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रोज़ादार के लिए नाक में दवा डाल लेने से कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि खलक तक ना पहुंचे। नीज रोज़ादार सुरमा लगा सकता है। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रोज़ादार हंडिया या किसी दूसरी चीज़ का जायका चख ले तो कोई हर्ज नहीं। अब ये हंडिया जायका चखना जो है उसमें भी हमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि हम जब कोई चीज़ रखने के लिए अपनी ज़ुबान की जो नोक है उसके ऊपर रखते हैं तो उसका जायका जो है वो अंदर सरायत हो जाता है। टेस्ट बड्स जो होते हैं हमारी ज़ुबान के ऊपर वो हमें जायका जो है उसकी खबर दे देते हैं। तो लिहाजा जायका चखने के लिए पूरे के पूरा नवाले की तरह से निगलना या किसी चीज़ को पीना हलक से नीचे लेकर जाना वो मुनासिब नहीं। हाँ, अलबत्ता सिर्फ ज़ुबान के ऊपर लगा कर उसके जायके का अंदाज़ा करके वापस कुली वगैरह कर देना, यहाँ तक जो है वो हमारे आज के उलमा जो है वो उसकी रियायत जो है वो हमें देते हैं कि वो हमें ऐसे इस तरह के मामलात में हमारी रियायत मौजूद है। बतौर ख़ास ऐसे मामलात में जब कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं, कोई इहतमाम कर रहे हैं, जिसमें खाना जो है वो बन रहा है ज़्यादा मकदार में, या बाज़ दफ़ा कुछ लोग घर में ऐसे होते हैं, कुछ अफराद या कुछ खावन जो है वो बड़े तेज़ मिजाज के होते हैं, वो ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर वावेला शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में फिर औरतों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी सहूलत जो है वो अल्लाह ताला ने या हमारे साहबा कराम जो है उनके कौल के मुताबिक हमें मिलती है। तो बहरहाल ये मामूल ना ही बने तो अच्छा है। हम रोज़ाना जो है वो एहतियात के साथ अ, ऐसे मामलात कर लें, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो ऐसी ज़रूरत से फिर ऐसे हमारी रुख्सत जो हमारे पास है उससे फ़ायदा जो है वो भी हासिल किया जा सकता है। इसी तरह से हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रोज़ादार अपनी थूक निगल सकता है। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और कौल कि अगर मक्खी रोज़ादार के हलक में चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। मक्खी यकीनन कोई जानबूझकर नहीं निकलेगा, कभी सांस के ज़रिए से या कभी खांसी वगैरह या हवा के ज़रिए से कोई मतलब इस तरह की कोई चीज़ अगर हलक में चली जाए, कसदन यकीनन वो नहीं गई, तो ऐसी सूरत में हर रोज़ादार वो बातिल नहीं होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं उनमें हमें रोज़ा के बातिल ना होने के बारे में कोई गुंजाइश हमें मिलती है। तो ये और दूसरे नंबर पर ये हमारे लिए रोज़मर्रा की आसानी की बातें जो हैं वो हैं। हाँ, ये इंजेक्शन लगवाना जो है उसके बारे में उलमा जो है वो कहते हैं ज़रूर कि इंजेक्शन लगाना जो है उससे रोज़ा टूट जाता है, किसी भी तरह का इंजेक्शन। क्योंकि अभी हमने एक रिवायत पहले भी देखी कि रोज़ा जो है जिस्म में किसी चीज़ के दाखिल होने से टूटता है, किसी चीज़ के बाहर निकलने से नहीं टूटता। तो इसकी बुनियाद पर उलमा जो है वो कहते हैं कि इंजेक्शन वगैरह लगाना उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। लिहाजा इंजेक्शन लगाना जो है उससे हमें एहतियात रखनी चाहिए। अगर कोई मामूल में कुछ ऐसा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो इफ्तार के बाद या सुबह सहरी से पहले वो लगा लिया जाए इंजेक्शन वगैरह। खासकर डायबिटिक्स के जो मरीज़ हैं उनके लिए ज़रूरत रहती है इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह की। तो उनमें फिर वक्त की तब्दीली के साथ कुछ मामलात जो हैं वो किए जा सकते हैं। अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो लेकिन देर से उठे तो सहरी खाकर गुस्ल कर सकता है, अलबत्ता खाने से पहले वुजू कर लेना चाहिए।
یہ بھی ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے ایک رخصت ہے یا رعایت ہے یا آسانی ہے ہمارے دین میں، بہت ہی اہم۔ کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اگر فرض غسل فرض ہو اور صبح اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، تو وضو کر کے بغیر غسل کے ہی سحری وغیرہ کھا لینی چاہیے، لیکن نماز سے پہلے غسل جو ہے وہ لازم، وہ ضرور ہے۔ اس کے بارے میں یہ روایت ہمیں بخاری سے ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب نہیں بلکہ جماع کے سبب حالت جنابت میں صبح کرتے، یعنی صبح سحری کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے بھی اسی بات کی طرف تصدیق کر دی۔ تو گویا کہ صبح حالت جنابت میں اگر دیر ہو گئی، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، تو وضو کر کے سحری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ البتہ سحری کرنے کے بعد نماز سے پہلے غسل جو ہے وہ ضروری کرنا چاہیے، کیونکہ غسل جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز جو ہے وہ ہماری نہیں ہوتی، اور ہماری طہارت جو ہے اس کو بھی مکمل ہونا، اس کے لیے وضو کا، سوری، غسل کا ضروری ہے۔ ایک اور روایت اس میں حضرت ہمیں مسلم میں ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو فرما لیتے تھے۔ اب یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے ہمارے لیے روزانہ کے معمول میں، کہ اگر رات کو یہ حالت جنابت میں ہے اور اگر سونے کی حاجت یا سونا چاہیں تو سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانا کھانے سے پہلے بھی وضو فرما لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رخصت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو غسل وغیرہ کر کے پاکیزگی کی حالت میں آ جانا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں ضرور رکھنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پر قابو ہوں۔ اب یہ بھی کچھ افراد یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جذبات پر اگر قابو نہ پا سکیں، تو ان کو اس ضمن میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر روزہ توڑ دیا انہوں نے یا روزے کو اگر باطل کر لیا کسی ایسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ جو ہے جیسا کہ تذکرہ ہوا، آج ایک روایت بھی ہم دیکھیں گے کہ کفارہ جو ہے روزہ توڑنے کا یا روزے کو باطل کرنے کا، جان بوجھ کر روزہ کو چھوڑ دینا جو ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے، تو کفارہ اس کا ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر وہ میسر نہیں یا وہ ممکن نہیں یا اس کی طاقت نہیں، تو پھر 60 مسلسل روزے رکھنا، اور 60 مسلسل روزے بھی اس طرح کہ اگر 60 روزے کے دوران کہیں پر بھی کوئی ایک روزہ اگر چھوٹ گیا، تو دوبارہ زیرو سے کاؤنٹنگ اس کی شروع ہوگی، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں یا یہ بھی پہنچ سے باہر ہے، تو پھر ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ کفارہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا کفارہ ہے، آسان چیز نہیں ہے، تو لہذا ہمیں روزے کو بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں اس کے معاملات میں رہنا چاہیے۔ احمد اور ابو داود کی یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا، کلی میں کیا حرج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسی یہ ہمارے اجازت جو ہے وہ ہمیں ہے، یا اس کی ہمیں آسانیاں میسر ہیں محتاط رہتے ہوئے۔ اسی طرح سے آگے روزے میں پچھے لگانا جو ہے یا کپنگ کرنا جس کو کہتے ہیں، کپنگ کرنا یا ہجامہ کرانا جو ہے وہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، بخاری میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھے لگوائے۔ تو پچھے لگوانا یہ بھی در حقیقت خون جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اس سے، تو اس اعتبار سے اس کی بھی اجازت ہے، اور یہ ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے کچھ درد وغیرہ کا، پین وغیرہ کے لیے، یا مختلف کچھ میڈیکل کنڈیشن میں یہ بڑا
ایک فائدہ مند ٹریٹمنٹ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے پچے لگوانا یا کپنگ کرانا یا ہجامہ وغیرہ کروانا جو ہے۔ اگلا چپٹر ہمارا وہ امور جن جو جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، ایسے کام جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، یا جن کو ہمیں روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے یا ترک کر دینا چاہیے۔ ان میں اب سب سے پہلے غیبت، جھوٹ، گالی، لڑائی جھگڑا، یہ سارا کچھ جو ہے جو روزے کی حالت میں بدجرہ اولا ناجائز ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ویسے بھی عام حالات میں بھی ناجائز ہیں، عام حالات میں بھی یہ برائی اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، تو لہذا عام حالت میں بھی ان چیزوں سے اجتناب ہی رکھنا چاہیے، بلکہ اجتناب ہی ہونا چاہیے۔ ایک مومن جو ہے وہ تو ایسی باتوں میں نہیں پڑتا، خاص کر اس میں اگر ہم دیکھیں تو غیبت کا معاملہ جو ہے، جھوٹ بولنا، گالی دینا سارے، لیکن غیبت جو ہے یہ ایسا غیر محسوس انداز میں ہم کر جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، تو لہذا غیبت کرنا یا دیگر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں عام حالات میں بھی اس کا ضرور احتیاط رکھنی چاہیے، اور رمضان یا روزے کے دوران تو بطور خاص توجہ کے ساتھ اس میں رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی بھول چوک میں بھی ایسی باتیں یا ایسے کوئی برائی کے معاملات جو ہیں وہ نہ ہونے پائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھی یہ عام معمولات میں تو چلے نماز کے ذریعے سے یا دیگر وہ توبہ وغیرہ کرتا رہتا ہے، کچھ کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پردہ پوشی بھی کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کوشش کرے گا تو ایسی چھوٹی چھوٹی برائیوں سے وہ پرماننٹلی اس کی جان جو ہے وہ چھوٹ بھی جاتی ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر ایسا کرے گا تو یہ گناہ برائیاں تو ہے ہی، روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے کی اس کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اس کا روزہ جو ہے وہی مطلب مضبوط تصور نہیں ہوگا اگر وہ روزے کے دوران بھی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں چھوٹے چھوٹے برائیاں جو ہے، جو چھوٹی برائی نہیں ہے کسی برائی کو بھی چھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے معمول کے مطابق ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن در حقیقت ہمیں اسے بڑے ایشو کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بول چال میں اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر ہم اپنے دل میں ذرا جھانکیں یا توجہ کریں تو یہ چھوٹی باتیں نہیں، یہ بھی در حقیقت بڑی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بخاری کے ایک اور روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ جس طرح نماز جو ہے وہ گناہوں کے درمیان ڈھال ہے، اسی طرح سے گناہوں کے درمیان ڈھال ہے ایک مومن کے لیے، اسی طرح سے روزہ بھی ڈھال ہے۔ لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش بات نہ کرے، بہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار کو سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں، میں اس طرح سے بےہودہ باتیں جو ہے یا گالی گلوچ جو ہے یا جھگڑا جو ہے وہ تم سے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے آگے روزہ کی حالت میں بےہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا یہ بھی منع ہے۔ یہ بھی یقیناً پہلا جو ہم نے دیکھا ابھی مسئلہ، اسی میں یہ بھی ساری چیزیں شامل آتی ہیں کہ عام حالت میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برائی یا گناہ یا مطلب برے کام ہے، تو رمضان میں تو بطور خاص اس کا اہتمام کر کے ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے صحیح معنوں میں جو مومن ہے، جو نماز کا اہتمام رکھتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے، وہ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، پھر میرے منہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں نکل گئی، یہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے، وہ اس کی عادت جو ہے اس سے نکل جاتی ہیں یہ چیزیں جو ہیں۔ اسی طرح سے جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغلگیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں۔ یہ وہی اس سے پہلے جو مسئلہ گزرا کہ بیوی کا بوسہ لینا جو ہے وہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شہوت پر قابو نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں اسے محتاط رہنا چاہیے، ایسی صورت میں احتیاط ہی بہتر ہے۔
जैसा कि ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमज़ान की रोज़े की हालत में मतलब अपनी बीवी से बोसा वगैरह जो बगलगिरी वगैरह जो है वो कर लेते थे, क्योंकि उन जैसा शहवत पर काबू पाने वाला कौन है। ये तो बुखारी की रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक रिवायत मरवी है जो कि अबू दाऊद में है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी से बगलगीर होने के बारे में सवाल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। फिर एक और आदमी ने उससे आदमी आया, उसने भी वही सवाल पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया। आज हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी वो बूढ़ा था, और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया वो जवान था। इसमें भी वही चीज़ हमें सामने नजर आती है कि जवानी की हालत में अगर वो अपनी ख्वाहिश पर काबू ना पा सके और कोई इस तरह से मैटर में चला जाए, तो उससे बेहतर है कि वो एहतियात ही कर ले, परहेज ही कर ले। ये 10 8 10 12 घंटे का जो रोज़ा है, रात को ये सारी हमें इजाज़तें जो हैं वो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जो हैं वो रोज़े से निकल कर, रोज़े की कैफियत से निकल कर की जा सकती हैं। बहरहाल हमें आसानी भी है और एहतियात जो है वो भी साथ साथ हमारी ज़रूरी है। इसी तरह से आगे, रोजे की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में इस तरह पानी डालना जायज नहीं कि हलक तक पहुंच जाए। ये इससे पहले भी 2 3 दफा इस रिवायत का या इस मसले का तज़किरा हो चुका। ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत हम दोहरा लेते हैं। हजरत लकीत बिन सबरा हजरत लकीत बिन सबरा अपने बाप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वुज़ू के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ू पूरा करो, उंगलियों के दरमियान खलाल करो और नाक में अच्छी तरह पानी डालो, लेकिन अगर रोज़ा से हो तो फिर ऐसा ना करो। यानी कहीं रोज़ा की हालत में नाक जो है वो पानी में ज़्यादा ऊपर चढ़ाने से खलक में चला जाए, तो एहतियात के तौर पर ज़्यादा ऊपर खींचना नाक में पानी वो मुनासिब नहीं है। नॉर्मल अंदाज से नाक जो है उसमें पानी जो है वो डालकर उसको साफ कर लेना वुजू के दरमियान, यही हमारे लिए बेहतर है। इसी तरह आगे आगे बढ़े अगर, तो अगला जो चैप्टर हमारे पास आता है वो रोजे को फासद करने या तोड़ने वाले उमूर, वो काम या वो बातें जिनसे रोजा जो है वो टूट जाता है या फासद हो जाता है। उसमें से कुछ पर तो कज़ा वाजिब होगी, लेकिन कुछ जो है वो कफारे के बायस भी बन सकते हैं। और जहाँ पर हमें कफारा अदा करना होगा वहाँ पर कज़ा भी साथ साथ है। यानी कज़ा भी है और कफारा भी है। यानी रोज़ा भी रखना है और रोज़े का कफारा जो है वो भी हमें अदा करना है अगर ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो हो जाती है तो। अभी इनमें हम देखते हैं रोज़ा के दौरान जमा कर लेना, कि उससे रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है। इस पर कफारा भी है और कज़ा भी है। रोज़े की हालत में मुबाशरत कर लेना, ये मतलब रोज़े को बातिल कर देता है। इसी तरह के रोज़ा का कफारा एक आदमी, एक गुलाम को आज़ाद करना, या 2 माह के मुसलसल रोज़े रखना, या 60 मोहताजों को खाना खिलाना है। अब ये बड़ा अहम हमारे लिए एक नुक्ता भी है, और यकीनन हम इसमें इख्तियार बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह मामूल था पहले दौर में, तो पहले दौर में कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिनमें से एक का तज़किरा यहाँ पर हमें बुखारी और मुस्लिम में मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर बैठा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू एक गुलाम आज़ाद कर सकता है? उसने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त किया, क्या 2 माह के मुसलसल रोज़े रख सकते हो? उसने अर्ज किया कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? उसने फिर अर्ज किया कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बैठ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर रुके, फिर
ابھی ہم اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک عرق لایا گیا، یعنی کہ ایک ٹوکرا لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ، مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں مبارک جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہنسے وہاں پر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے یہ ہمیں بخاری اور مسلم میں ملتا ہے۔ اس میں ایک تو روزہ باطل ہونے کی وجہ سے جو کفارہ ہے وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر ان میں سے کسی ایک بھی طاقت ہے، یہ ہر ایک کو اپنی طاقت کا، اپنی بساط کا، اپنے وسائل کا پتہ ہے، جان بوجھ کر کوئی اس میں ڈنڈی مارے گا تو یقیناً اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ ان تینوں میں سے اگر کسی ایک چیز پر وہ استطاعت رکھتا ہے، تو اس کو اس کے مطابق کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر اگر تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز میسر نہیں تو صدقے کے ذریعے سے وہ اپنا روزے کا کفارہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ لیکن اس حد تک نوبت آنے سے پہلے ہی ہمیں احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح آگے ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن مسیب، یہ ہمیں تلفظ صحیح جو ہے وہ عربی ٹیکسٹ سے ملتا ہے، معذرت میری لنگوسٹ بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے، میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ تو یعنی روزے کی قضا ادا کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اس کفارے کے ساتھ یا صدقے کے ساتھ۔ تو یہ جس صحابی کو یا جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا کہا، یقیناً وہ اس اس استطاعت نہیں رکھتا ہوگا کہ وہ کفارہ اس طرح سے ادا کر سکے۔ تو لہذا قضا اور کفارہ یہ دونوں جو ہیں ایک ساتھ لازم ہیں، دونوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آگے قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قصدن قے کرنا اس صورت میں، جو میری یہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہے، قصدن کیا کرنا یعنی جان بوجھ کر کیا کرنا جو ہے وہ عام طور پر تو بندہ جان بوجھ کر کیا نہیں کرتا، اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اگر وہ کیا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قضا جو ہے وہ دینی ہوگی۔ اگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ویسے بھی مطلب بیماری کی وجہ سے یا حالت سفر میں یا اس طرح کے معمولات میں اگر روزہ نہ رکھا جائے تو وہ بھی اجازت ہے، اگر روزہ رکھا ہو اور وہ اس کو توڑنا پڑ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس صورت میں قضا ہوگی۔ تو یہ صورت جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے کہ اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے، کوئی معدے کی خرابی کی وجہ سے یا کچھ دوسری وجہ کی وجہ سے، تو مطلب تو کیا کرنا جو ہے وہ ضرورت ہو، تو اس صورت میں اگر کیا کر لی جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا جو ہے اس کی ضرور دینی ہوگی۔ خود بخود اگر کیا آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر قصدن کوئی صرف روزہ توڑنے کی نیت سے کوئی قضا کیا کرے گا تو یقیناً اس کے اوپر کفارہ جو ہے وہ بھی ہوگا۔ یہاں پر کچھ میڈیکل کنڈیشن جو ہے اس کی بنیاد پر اگر کیا کرا دی جائے کسی کو یا کیا کر لے کوئی تو اس پر قضا جو ہے وہ دینی ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ روایت بھی ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روزہ دار کو خود بخود کہہ آ جائے اس پر قضا نہیں، البتہ جو روزہ دار قصدن کہہ کر لائے وہ قضا روزہ رکھے، اس کے لیے قضا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے آگے حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں ہے۔
हैज या कज़ा किसी रोजे के दौरान अगर किसी औरत पर ऐसी कैफियत जो है वो शुरू हो गई तो वो रोज़ा जो है वो टूट जाएगा, और उसके बाद जब तक जितने रोज़े जो है वो ऐसी कैफियत में गुजरेंगे, वो सारे के सारे उनकी कज़ा जो है वो होगी, लेकिन उसका कफ़ारा नहीं होगा। ये औरतों के एक मामूल का मसला है जो मतलब हम उन औरतों को दरपेश रहता है। और इसके बारे में भी मुख्तलिफ रवायात हमें मिलती है। बुखारी की रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि औरत जब हाइजा हो जाती है तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है, और औरतों के दीन में कमी की यही वजह है। इसी तरह से अबू जिनाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मसनून और शरई अहकाम, ये इसकी वजह जो है कि रोज़ा 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 तोड़ने रोज़ा जो है हालत नफाज में या खैज हैज में रोज़ा जो है उसकी कज़ा देनी है या नमाज की कज़ा क्यों नहीं है, या नमाज की अगर कज़ा है, रोज़े की अगर कज़ा है तो नमाज की कज़ा क्यों नहीं है। तो इसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन जहाँ पर हमें मिलती है, बुखारी में हज़रत अबू जिनाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मसनून और शरई अहकाम बसा औकात राय के बरक्स भी होते हैं। इस तरह के आजकल लिबरल किस्म के तबके जो हैं या लिबरल किस्म के लोग जो हैं वो इस तरह की बातें जो है वो करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर या मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ मसाइल में। तो हमें ये देखना है कि शरई अहकाम जो हैं वो अगर हमारे ऊपर वाज़े हैं तो उनको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी है। उसमें फिर हमें अपनी तरफ से नोक झोंक या अपनी तरफ से कोई मामलात जो हैं वो नहीं करने चाहिए, उसमें एहतियात रखनी चाहिए। हाँ, कुछ इख्तलाफी मसाइल या कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन या आजकल जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कुछ मामलात हों तो उनमें बहस या उनमें कुछ बातें जो हैं वो समझी जा सकती हैं, राय मतलब मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन शरीयत के जो वाज़े अहकामात हैं उसमें हमें जो राय जो अपनी राय जो है उसके ऊपर फोकियत होगी, हमें जो हमारी शरीयत जो है वो देती है। इसी तरह से इन्हीं अहकाम में से एक हुक्म ये भी है कि हाइजा रोज़ों की कज़ा तो दे लेकिन नमाज की कज़ा ना दे। तो ये एक शरीयत का हमारा असूल है या हमारा एक तरीका है या हमारा एक एक हुक्म है कि औरत जो है वो नमाज की कज़ा नहीं देगी, लेकिन रोज़े जो है उनकी कज़ा जो है वो देगी। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नफली रोज़े जो हैं, पहले तो जितना है फ़र्ज़ रोज़े आमतौर पर रमज़ान में, लेकिन नफली रोज़े जो हैं वो भी बड़ी अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर कोई नफली रोज़े रखता है तो सुबहान अल्लाह, वो अल्लाह ताला की एक बहुत ही अजीम नेमतों में से नेमत जो है उसको हासिल करता है। मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी कि हम तौफीक दे अल्लाह ताला के हम भी ऐसे कुछ काम, नफली काम जो है, फर्ज जो हैं, जब जैसे रोजे जो हैं फर्ज हैं, फर्ज रोजे रखने वो तो फर्ज हैं, वो तो रखने ही रखने हैं, उसमें तो कुछ छूटा ही नहीं। जो नहीं छोड़ेगा उसकी पकड़ है, उस जो नहीं रखेगा या छोड़ेगा जानबूझकर बगैर किसी शरई उज़र के, उसकी तो पकड़ है। लेकिन असल बात तो ये है कि नफली रोजे जो है वो रखे। नफली रोज़ों का सवाब जो है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी पकड़ नहीं, तो उसमें वो कितना फ़ायदा ले सकता है। तो असल जो मतलब सही तकवा वाले बंदे जो हैं, उनका उनके उनकी निशानी तो नफली इबादत हैं कि फ़र्ज के अलावा वो नफली इबादत जो है वो कितनी करते हैं। तो बहरहाल मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम नफली इबादत में भी अपने मामलात को संवारें और बेहतरी लाएं, और कुछ अमल जो है वो उसमें बेहतरी कर सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन। नफली रोज़े के फजीलत के बारे में हमें ये रिवायत मिलती है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम की आग से दूर कर देंगे। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। ये फ़र्ज़ रोज़े के ज़िमन में भी इससे पहले आई थी, लेकिन ये आम तौर पर रोज़े के बारे में सिर्फ इसमें फ़र्ज़ रोज़े का तज़किरा नहीं है। तो इसलिए ये रोज़ा चाहे फ़र्ज़ हो या नफली हो, दोनों सूरतों में, यानी रोज़ा जिसने नफली रख लिया वो भी गोया 70 साल की मुसाफत से जहन्नम से दूर हो गया। कि किस कदर बड़ी फजीलत जो है इस तरह से रोज़ा, नफली रोज़ा जो है वो रखने की अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारा दिया उसका। इसी तरह से हर साल के अब बहुत सारे नफली रोज़े ऐसे हैं जो कि सुन्नत हैं रखना,
तो वो सुन्नत रोज़े जो हैं उनमें से अक्सर का तज़किरा जो है वो हमें मिलेगा। मुख्तसर अंदाज से हम बढ़ते हैं आगे। हर साल शवाल के 6 रोजे रखने का सवाब उम्र भर के रोजे रखने के सवाब के बराबर है। ये बड़े आम मशहूर नफली रोजे हैं जो कि माह रमज़ान के बाद शवाल के 6 रोजे रखना, और शवाल के जिसने रमज़ान के 30 रोजे रखे और उसके साथ शवाल में भी माह शवाल के दौरान दौरान चाहे तरतीब के साथ चाहे छोड़ छोड़ कर 6 रोजे जिसने पूरे कर लिए शवाल के भी, तो रमज़ान के साथ शवाल के रोज़े जब मिलेंगे तो गोया के पूरे साल के रोज़ों का सवाब जो है वो मिलेगा। रमज़ान के या फ़र्ज़ रोज़ा जो है वो एक रोज़े का सवाब 10 रोज़ों के बराबर है। तो शवाल के 6 रोज़े जो है उनका सवाब भी उसी तरह से 10 रोज़ों के बराबर अगर लगाएं तो वो पूरे साल के रोज़े बनते हैं। 30 रोज़े रमज़ान के और 6 रोज़े शवाल के, 36 रोज़े, और 10 से ज़रब धरें तो 360 दिन के रोज़ों का सवाब जो है वो मिलता है। तो लिहाजा शवाल के रोज़े जो हैं उसको तो रखने की ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम कोशिश करें तो ये तो हम आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ान के रोज़े से अगर गुजरे हैं, हम रमज़ान से गुजरे हैं तो हमारी कुछ आदत रोज़मर्रा के मामूलात ऐसे बन चुके हैं, तो आदत कुछ ऐसी बन चुकी होती है। तो उसमें फिर हम शवाल के शवाल में भी अर्ली शवाल के रोज़े अगर रखें तो हम बड़ी आसानी से कोशिश करें तो ये कर सकते हैं। अलबत्ता जो कज़ा रोज़े हैं वो कज़ा रोज़े, क्योंकि कज़ा रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ के मुतरादिफ हैं या फ़र्ज़ ही रोज़े हैं, तो लिहाजा शवाल के रोज़े हों या कोई भी नफली रोज़ा हो उससे पहले हमें कज़ा रोज़े जो हैं वो पूरे करने हैं या उनको अदा करना है। तो बतौर ख़ास ख़वातीन जो हैं जिनको माहवारी की वजह से कुछ रोज़े जिनके छूटते हैं और उनको कज़ा देना है, तो उनके लिए भी 6, 8, 10 जितने भी रोज़े उनके छूटे हैं, पहले वो रोज़े जो हैं वो कज़ा वो पूरे करेंगे, उसके बाद फिर शवाल में तो उनके लिए फिर ये एक लिमिटेशन एक इजाफी है। और यकीनन वो अल्लाह ताला की तरफ से दोहरे तेहरे या पता नहीं कितने गुना अजर की मुस्तहिक होंगे अगर वो कोशिश करें कि अपने कज़ा रोज़े भी उन्होंने पूरे किए शवाल में और 6 रोज़े भी रख लें। और आम मर्द हजरात जो हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसानी है कि वो आसानी के साथ ये शवाल के 6 रोज़े जो हैं वो पूरे कर सकते हैं, रख सकते हैं। मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, बहुत सारी हदीस की किताबों में ये रिवायत मनकूल है हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रख कर हर साल शव्वाल में भी 6 रोज़े रखे उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। तो जो उम्र बन यानी हर हर साल उसने ये अमल जो दोहराया, शवाल के रमज़ान के 30 रोज़े पूरे रखे, फिर शवाल में भी 6 रोज़े उसने रख लिए, तो गोया उसने सारी उम्र रोज़े रखे या सारी उम्र उसकी रोज़ों में गुजरी। ये उसका अजर है अगर कोई कोशिश करे हर साल बाकायदगी से। इसी तरह से नफल रोज़ों में बाकायदगी के साथ अय्याम बीद यानी चांद की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े रखना उम्र भर के रोज़े रखने का सवाब मिलता है। अगर ये भी कोई हर हर माह बाकायदगी से 3 रोज़े अगर रखता है चांद की 13, 14, 15 तारीख को, तो गोया उसने सारी उम्र रोज़े जो हैं वो रखे। ये भी मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियानी अरसे में हर माह 3 दिन अयाम बीद के रोज़े रखना उम्र भर के रोज़े रखने के मुतरादिफ है या बराबर बराबर है। अगर इसकी भी कैलकुलेशन हम देखें तो 12 महीनों में तीन हर 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 महीने में 3 अगर रोज़े रखे हैं तो 12 3 36, और 36 को 10 से ज़रब दें तो 360 रोज़े बनते हैं। इसमें रमज़ान तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके अलावा बाकी महीनों का भी काउंट करें तो ये पूरी उम्र के रोज़े बन जाएंगे अगर किसी ने हर महीने 3 रोज़े जो है उनको अहतमाम कर लिया। सफ़र में नफली रोज़ा रखना जायज़ है। सफ़र के दौरान ये भी इजाज़त है, कोई नफली रोज़ा रखना चाहे तो रख ले, ना रखना चाहे तो नफली रोज़ा तो वैसे ही अपनी मर्ज़ी से मुताबिक है, तो लिहाजा अगर कोई रखेगा तो यकीनन उसका अजर जो है वो पाएगा। हज या सफ़र के दौरान रोज़ा रखने वाले को अल्लाह ताला 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम से दूर कर देगा। इसी तरह से जिहाद या हज के सफ़र के दौरान जो रोज़ा रखता है उसके लिए भी इसी तरह से इजाज़त मतलब एक फजीलत है उसकी कि 70 साल की मुसाफत जहन्नम जो है वो दूरी है उसकी। इसी तरह से पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत थी। तो पसंदीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है वो पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना ये उनका मामूल भी था और पसंदीदा अमल भी था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर, सोमवार और जुमेरात को लोगों के अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएं, तो मैं उस वक़्त रोज़े की हालत में हूँ। तो गोया कि इससे हमें यह भी पता चला कि सोमवार और जुमेरात के रोज़ लोगों के अमाल जो हैं वो अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। ये अल्लाह ताला की एक तरतीब या निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला ने सेट किया हुआ है। उसमें से एक की तरफ हमें इशारा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उनकी ये ख्वाहिश, उनका इजहार किया उन्होंने कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाएं, तो यकीनन उसमें होगा कि कैफियत होगी कि बंदा मेरा क्या कर रहा है। तो उस वक़्त अगर वो रोज़े की कैफियत में है तो अल्लाह ताला को उसको यकीनन पसंद करेंगे। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी। और ये मामूल जो है, ये बड़ा अच्छा सुन्नत है। और बहुत सारे लोग जो हैं, सुबहान अल्लाह, इसके ऊपर भी मतलब अमल करते हैं और इसको करते भी हैं। इसी तरह से योम अरफा यानी 9 जिलहज्जा का एक रोज़ा गुज़िश्ता एक और आइंदा एक यानी 2 साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है। और इसी तरह से योम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा गुज़िश्ता एक साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है। ये दो रोज़े जो हैं, 9 जिलहज्जा का रोज़ा 2 साल का कफ़ारा है पिछले और आइंदा। और योम आशूरा का रोज़ा जो है 10 मुहर्रम का, वो एक साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है। और कफ़ारा जब भी हम ऐसी रियायत हमें मिलती है तो सगीरा गुनाहों के बारे में, क्योंकि कल भी तज़किरा हुआ कि कबीरा गुनाह जो है उनकी तौबा करना और उनकी सज़ा वगैरह जो है, तौबा की शराइत उसके ऊपर लाजिम होंगी। लेकिन सगीरा गुनाह जो भूल चूक से या मामूल की आदत की वजह से मतलब अगर हो जाते हैं, तो वो सारे गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। ऐसे बहुत सारे अमल हमें मिलते हैं, नेकी के काम। उनमें से ये 9 जिलहिज्जा और 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो भी शामिल है। जैसा कि हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफा के रोज़े के बदले में अल्लाह ताला एक एक गुज़िश्ता और एक आइंदा साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे, और यौम आशूरा के रोज़ा के बदले में गुज़िश्ता एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। ये मुस्लिम में ये रिवायत है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये रिवायत जो है मनकूल है, ये कौल के जिसने योम अरफा का रोज़ा रखा, उसके गोया के 2 साल के सगीरा गुनाह, और योम आशूरा के रोज़े की सूरत में एक साल के सगीरा गुनाह जो है वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना जो है वो मकरूह है। सिर्फ 10 मुहर्रम के रोज़े में आगे जाकर हदीस नंबर 109 या मसला नंबर 129 यानी 129 में आकर इसकी तफसील हमें मिलेगी कि जब मदीना में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया, तो सहाबा ने कहा कि 10 मुहर्रम तो यहूदियों का बड़ा पसंदीदा रोज़ा है, क्योंकि वो हज़रत मूसा को उस दिन फ़िरौन से निजात मिली थी। तो 10 मुहर्रम का रोज़ा तो यहूदी रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूदियों की निस्बत हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हैं या ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो हम जो हैं वो, अगर मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि आइंदा रमज़ान में 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखूंगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़िंदगी ने मोहलत ना दी कि अगला मुहर्रम जो है वो उनकी ज़िंदगी में आता है। तो लिहाजा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जो हदीस है उसकी बुनियाद पर हमें जो मतलब रहनुमाई मिलती है वो यही है कि सिर्फ अकेला 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना जो है वो मकरूह है। या 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए, या उलमा कहते हैं कि 9 को अगर नहीं रख सके तो 10 के साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा मिलाकर रख लिया जाए। तो ये जो है ये हमारे लिए मुनासिब है। सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना उस रिवायत की बुनियाद पर मकरू जो है वो उलमा हमें बताते हैं। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बाकी सब महीनों से ज़्यादा रोज़े रखते थे। माह शाबान में अक्सर अक्सर जो है वो रोज़े रखते, सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। ये इससे पहले हम इसका तज़किरा जो है वो गुजर चुके। लेकिन 15 शाबान जो रोज़े नहीं रखता या जिसका रोज़े रखने का मामूल नहीं है, उसके लिए 15 शाबान के बाद रोज़े रखना जो है वो मुनासिब नहीं है। उसको चाहिए कि 15 शाबान से पहले ही जितने रोज़े रख सकता है रख ले। नफली रोज़ा रखने में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखने का तरीका जो है वो सबसे अफजल है।
नफली रोज़े जब वो कोई बाकायदगी से तरतीब के साथ जैसे रमज़ान में रोज़ाना की मामूल में रखते हैं, इस तरह से नफली रोज़े जो है इस तरह से नहीं रखने चाहिए, बल्कि एक रोज़ा छोड़कर, एक दिन छोड़कर एक रोज़ा जो है वो रखना चाहिए। मुसलसल नफली रोज़े, उसमें सिर्फ ये 13, 14, 15 चांद की जो है वो तो एक हमें बतौर ख़ास उसकी हमें हिदायत या रहनुमाई मिलती है। इसके अलावा जो नफली रोज़े हैं वो हमें एक एक दिन छोड़ कर रखने चाहिए, अगर कोई इसका अहतमाम करना चाहे तो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर माह 3 दिन के रोज़े रखो। मैंने अर्ज़ की, मुझ में इससे ज़्यादा ताकत नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर मुझसे रोज़े कम कराते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन रोज़ा रखो। सॉरी, गालिबन मैं गलत पढ़ गया। हर माह 3 दिन के रोज़े रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र से। तो मैंने अर्ज किया कि मुझ में इससे ज्यादा ताकत है, यानी मैं सारे रोजे रख सकता हूँ, मुझ में ताकत है कि मैं सारे रोजे रखूं। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर मुझसे रोजे कम कराते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रोजा रखो, एक दिन तर्क करो, ये अफजल तरीन रोजे हैं। मेरे भाई दाऊद अलैहिस्सलाम का भी यही तरीका था। यानी ये नबियों की सुन्नत में से एक सुन्नत जो है वो चलती आ रही है कि अगर रोज़े रखने हैं मुसलसल, तो एक रोज़ा छोड़कर एक रोज़ा जो है वो रखना है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास हिदायत जो है उन लोगों के लिए जो ताकत भी रखते हैं, इस्तात भी रखते हैं और रोज़ाना रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके लिए है कि एक दिन रोज़ा छोड़कर वो रख सकते हैं। मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने की फजीलत जो है, माह मुहर्रम जो है उसमें भी रोज़ा रखने की बहुत फजीलत मेरे ख्याल में। रमज़ान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं, जो अल्लाह का महीना है। और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की है। इसी तरह से मुहर्रम के महीने में भी रोज़े रखना जो है वो भी हमें काफ़ी फजीलत जो है उसकी हमें हदीस में मिलती है। इसी तरह से सोमवार के दिन के रोज़े की फजीलत जो है वो हमें मिलती है। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन मैं पैदा किया गया, इसी दिन मुझ पर कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। ये मुस्लिम की रिवायत है। यानी सोमवार के महीने की रोज़े की फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो इस दिन हुई थी, और इसी दिन कुरान मजीद का नज़ूल जो है वो शुरू हुआ था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी इस दिन रोज़ा रखते थे। और हमें भी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम सोमवार को रोज़ा रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मंसूब जो है वो 12 रबीउल अव्वल के जो मुख्तलिफ जो आजकल जो बन चुके हैं ईद मिलादुन नबी के नाम से, कुछ बिदात जो हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो ये था कि जिस दिन उनकी पैदाइश थी वो तो हर हफ्ते उस दिन रोज़ा रखते थे। तो लिहाजा इस तरह की खुराफात जो हैं उनसे हमें ज़रूर बचना चाहिए। 9 जिलहिज्जा के पहले 9 रोज़े रखना मुस्तहिब है। 9 जिलहिज्जा से पहले, यानी जुल्हिज्जा के पहले 9 रोज़े रखना जो है। इसी तरह से हर माह कोई से 3 रोज़े रखना भी मुस्तहिब है, और हर माह पहले सोमवार और पहली दोनों जुमेरात के रोज़े रखना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। बहुत सारे नफली रोज़ों का तज़किरा हो रहा है। उसके अलावा जिलहज्जा के पहले 9 रोज़े रखना ये भी बड़े मुस्तहिब हैं। हर महीने में कोई 3 रोज़े रखना, जैसा कि एक जो है वो 3 रोज़े अयाम बीद के जो हैं वो भी गुजर चुके हैं। उसके अलावा पहली सोमवार और पहली 2 जुमेरात को रोज़े रखना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ रिवायात जो हैं उससे हमें मिलता है। जैसे ये रिवायत एक हम देखते हैं निसाई से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जोजा मोहतरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल हज्जा के पहले 9 रोज़े और योम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। इसके अलावा हर माह में 3 रोज़े रखा करते थे, एक रोज़ा हर माह के पहली सोमवार को, और हर माह की पहली 2 जुमेरात को एक एक रोज़ा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल में से एक मामूल ये भी था। नफली रोजे की नीयत दिन में जवाल से पहले किसी भी वक्त की जा सकती है, बशर्ते कि कुछ खाया पिया ना हो। फर्ज रोजे की नीयत जो है वो तो सहरी से पहले करनी ज़रूरी है। लेकिन नफली रोज़ा जो है, अगर सुबह उठने के बाद भी कुछ खाया पिया नहीं और जवाल के वक्त से पहले
اس کا ارادہ کر لیا جائے یا نیت کر لی جائے کہ میں آج روزے سے ہوں، تو وہ روزہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں روایات جو ہیں وہ اس سے پہلے ہم نقل کر چکے یا اس کا تذکرہ کر چکے۔ اسی طرح سے نفلی روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ اگر نفلی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا توڑ دیا جائے، جان بوجھ کر بھی توڑ دیا جائے، تو اس صورت میں بھی قضا اس کی واجب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کفارہ ہے۔ قضا اور کفارہ جو ہے وہ فرض روزے کے صورت میں ہے۔ اسی طرح سے نفلی عبادات میں اعتدال اور میانہ رفع بھی ضروری ہے۔ نفلی عبادات میں عبادات اور اس سے پہلے گزر چکی ہیں رمضان کے روزوں کے متعلقہ بھی، اور کہ مسلسل روزے رکھنے کی بجائے ایک ایک روزہ چھوڑ کر رکھنا، یا مختلف انداز سے روزے رکھنا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے نماز تراویح کے بارے میں بھی دیکھا کہ اعتدال میانہ روی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی تھکاوٹ وغیرہ ہے تو وہ اس میں پھر مؤخر کر دیا جائے، یا مطلب نفلی عبادت جو ہے وہ چھوڑ دی جائے۔ لیکن دل کو تنگ کرنا ہے یا دل میں کوئی منفی رجحان پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ اس میں ہم سہولت کے مطابق نفلی عمل جو ہے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں کریں۔ اسی طرح سے سیام اربعین یعنی 40 روز کا چلہ، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی کچھ ایک خرافات میں سے ایک شامل کر لیے گئے۔ اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے معمولات میں شامل ہیں، ہماری باتوں میں شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر پھر کان دھرتے ہیں اور اس کے مطابق بڑا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو 40 روزوں کا چلہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ بہرحال ہم یہیں پہ رکتے ہیں، یہیں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ روکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آج بھی ہم نے جو جن معاملات میں ہم نے فہم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح فہم ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کر کے صحیح عمل جو ہے اس پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، جیسا کہ تذکرہ ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلا اتوار اور پیر جو ہے، اگلی دو مجلس جو ہے وہ بھی اسی موضوع پہ رکھیں گے۔ اور یہ کتاب کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور ہمارے پاس الحمدللہ وقت بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رکھے، تو ہم یہ کتاب جو ہے وہ اسی طرح سے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر رمضان کی جو چھٹیاں کہہ لیں، یا رمضان کے دوران ہمارا یہ روزانہ کا مجلس کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع رہتا ہے، تو پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اب اتوار اور سوموار دو مجلس جو ہے وہ ضرور ہوں گی ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے انشاءاللہ۔ جی، اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہم نے خاص مدد، خاص آسانیاں، خاص رہنمائیاں ہمارے شامل حال رکھے۔ اپنی خاص مدد ہمارے روزانہ کے معمول میں ہمارے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ، آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔